this is something you always wanted to go for, or something led to this? I've always known that I wanted to adopt. अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको सोसाइटल प्रेशर है बच्चा पैदा करने का, तो ये इंटेंट ही गलत है। बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि बच्चे तो इतने हैं फिर जा क्यों नहीं रहे। एक बच्चे होना और एक चिल्ड्रंस अवेलेबल फॉर अडॉप्शन होने में एक डिफरेंस है जो आम लोगों को नहीं पता होता है। क्या आपको लगता है डायरेक्ट अडॉप्शन अभी भी होना चाहिए? इफ नॉट, व्हाई? और कारा के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए? मैं ये कहूँगा कि हम लोग बच्चे बेच रहे थे मतलब वी वर सेलिंग किड्स, क्योंकि जब आप पेरेंट्स आते तो आप उनसे पूछते कि फाइनेंशियल आपका स्टेटस, तो लोग अपना मुंह मांगा दाम बोलते थे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पहले बहुत होती थी, बच्चा ले आते थे, पता ही नहीं होता था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। Every child who is adopted comes with an adoption trauma, a separation trauma. चाहे वो छोटा इन्फेंट हो चाहे वो बड़ा हो, एक ट्रॉमा उसके पास है, हिडन ट्रॉमा है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है या वो अपनी माँ के साथ नहीं है। We don't realize this. But it manifests later in life, sometimes quicker, sometimes later. No matter how happy your home environment is, the child will need therapy at some point. आप कभी ये मत जताओ बच्चे पे कि हमने आप पे एहसान किया है। Always say to the child, we are blessed but because of you. There's nothing more excruciating than giving birth to a child. And I say this from my personal experience. But उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है to raise that child. Birthing of a child takes 9 months, but raising them a whole lifetime. So for today's episode, we thought to give you a masterclass on love. Today on Mathehood, we talk about adoptive parenting with Shruti, who advocates safe and legal adoption and has a beautiful daughter, Zoya, that came to her as a miracle through the process. And with her, we have Giriraj Meena with us, who's an adoption officer working with Miracle Charitable Society, and he works tirelessly on the social and legal sides of the adoption spectrum to educate aspiring parents about the adoption process and also ensures safe adoption in India. I'm really excited to be having this chat today because this is a topic which a lot of parents want to know about and there is very little which is known. So आज हमारे पास adoption के पूरे process को समझने के लिए और उसको deconstruct करने के लिए है श्रुति, who has adopted a beautiful daughter in 2018, and we have Giriraj जो parents को adoption में help करते हैं. So we have got the best for both the worlds for our audience. So Shruti, you're a mother of 2 beautiful daughters. Mm-hmm. You have your own biological daughter, and then you have a beautiful daughter which you have adopted. So I would love to know from you, was adoption always on your mind? This is something you always wanted to go for, or something led to this? No, I've always known that I wanted to adopt ever since I was a child. Mm-hmm. I was the older child in a large extended family. Okay. So, and I love kids. I've always liked kids and kids have liked me. So my mom's best friend lived in Canada and that was the first time that I heard someone adopt a baby. And I just thought that was the most wonderful thing anyone could do. And she was a single mom. Okay. And I'm talking about 30 years ago. So for me, that was living in India, that was a big thing. We did not know anyone who had adopted. Okay. Or even if they did, they hid it. That was the norm back then, that if you couldn't have a child, you would adopt within the extended family and then not tell anyone. Yeah. But it was like an open secret because everyone could see. Yes. But that was my introduction to adoption. And I knew that down the line, somehow I will go through that process. क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक डॉटर थी और उसके बाद आपने दूसरी डॉटर को अडॉप्ट किए. So adoption was always on my mind. Yes. We just, as a couple, we hadn't discussed it. Like, that was my next question. Yeah. Was your partner on the same page with you? और उनको convince करना कितना difficult था? Actually, मुझे convince करना ही पड़ा. This entire idea was somewhere on the back burner. You know, life happens and I was in a really high-flying job. I was never at home. So even having a child at a certain point of time felt like was not an option for us. We were traveling all the time, and then I knew for a fact that whenever I would have kids, I would quit that particular career and focus on them. So it took me a while to get to that level. And then we had our daughter. Yeah. The day she was delivered,
that was the day we decided that we will adopt another girl. Yes. It just somehow happened. We were in the hospital, and I just thought we were filling up the birth certificate, and we decided on the name Zara, How beautiful. which was very different because everybody, during that time at least, this was 12 years ago, हाँ जी. A was the letter that everybody was going for. And I just thought we'll go with Z. Let's not go with that. And so we were filling up the form, and I just asked my husband, what if we have another girl? Do you think we'll go with another Z? Huh. He said, yes. Yes, I think so. And we decided it was Zoya. Hmm. And that's when we felt like adoption is the next step. So Zara and Zoya, Zoya, how yes. beautiful. Beautiful names. So Giriraj, I was just speaking with you. What a wonderful work you're doing. Thank you. You're running an orphanage, and at the same time you're also helping parents with adoption. So अभी ये स्टार्ट्स क्या कहते हैं? आपको लगता है इंडिया में लोग अपना अडॉप्शन राइट फुली एक्सरसाइज कर रहे हैं? I'm an adoption officer from last 8 years, and actually I'm not running the orphanage. So Mrs. Simran Lamba, she is the president of Orphanage Miracle Charitable Society. Okay. I'm working there as an adoption officer from last 8 years. अडॉप्शन स्टेट्स में देखिए अडॉप्शन पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अडॉप्शन इंडिया में कोई नई चीज़ है या न्यू है, बट पहले क्या होता था, इमीडिएट फैमिलीज में होता था या रिलेटिव्स में होता था, अपना फ्रेंड्स में हो जाता था आपस में. लीगली कारा ने जो 2015 में कारा ने जेजे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद में एजेंसीज को स्टेबलाइज किया कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों की केयर करती है, केयर एंड प्रोटेक्शन देती है, वो पहले क्या होता था डायरेक्टली अडॉप्शन दिया करती थी, जिससे आप वॉक इन करो एंड देन आप चूज करके बच्चा आप ले लेते थे. बट इसको स्ट्रीमलाइन किया कारा ने कि एज पर द रूल एक अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, अपने मन मर्जी से कुछ नहीं होना चाहिए, सब जगह अपना अपना चल रहा था. तो कारा ने इसको स्ट्रीमलाइन किया एंड देन एजेंसी स्टेबलाइज हुई. तो हम लोगों ने भी मिराकल जो चैरिटेबल सोसाइटी है, उन्होंने 2015 में स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी अंडर कारा के रजिस्टर करके हमने काम स्टार्ट किया. आज की डेट में नो डाउट बच्चे बहुत हैं इंडिया में, मतलब बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि बच्चे तो इतने हैं फिर जा क्यों नहीं रहे. हाँ. मैं कभी नहीं कहूँगा कि इंडिया में जो होम्स हैं, जिनको हम ऑर्फनेज वर्ड नहीं कहना चाहिए, आई थिंक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है, बच्चे जहाँ पे रहते हैं एज ए फैमिली, जहाँ रहते हैं फैमिली एनवायरनमेंट में, बच्चे बहुत हैं, लेकिन एक बच्चे होना और एक चिल्ड्रंस अवेलेबल फॉर अडॉप्शन होना में एक डिफरेंस है जो आम लोगों को नहीं पता होता है. क्योंकि देखो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई बच्चा अगर हम किसी फैमिली को दे रहे हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि उसके सारे लीगल कंप्लायंस हो, आपको वो दिया गया हो, बाद में वी डोंट वांट कि कोई आके उसको क्लेम करें. बिल्कुल. तो ये चैलेंजेस सारे इस वजह से जो आज की डेट में ऑन एन एवरेज ईयरली जो अडॉप्शन हो रहा है इंडिया में थ्रू कारा, वो अराउंड 3,000-3,500 ईयरली हो रहा है आज की डेट. ओके जी. सो अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें, आप मुझे बहुत सिंपल टर्म्स में इफ़ यू कुड एक्सप्लेन कि अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, और उसके बारे में सारे रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को कहाँ पे मिल सकते हैं. बहुत सिंपल प्रोसेस बनाया गवर्नमेंट ने, इतना स्मूथ बनाया कि कोई भी व्यक्ति इजीली, आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है www.cara.wcd.gov.in. सिंपली किसी भी व्यक्ति को अगर अडॉप्शन लेना है, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको, खुद को, पेरेंट्स को बेसिक डिटेल डालना होता है कि फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, एड्रेस क्या है आपका. जैसे आप अपना एड्रेस डालते हैं तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके जोन में जितनी भी अडॉप्शन एजेंसीज है उनका ड्रॉप डाउन में लिस्ट आ जाता है कि आपके घर के नियरेस्ट एजेंसी कौन सी है. तो आप वो पिक कर लीजिए कि मेरे जो नियर में ये वाला एजेंसी, आप उसको पिक करो, अपना रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल डाल के, कुछ 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकम प्रूफ हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एड्रेस प्रूफ हो गया, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है पेरेंट्स का, ये फोटो हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये डाल के आप सबमिट करो. एजेंसी के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा, एजेंसी विल रीच आउट टू यू. गवर्नमेंट इतना स्मूथ करा है कि पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है, आपको कुछ कहीं नहीं भागना है कि मैं कहाँ जाऊँ, टेंशन नहीं लेनी है. द एजेंसी विल रीच आउट टू यू. अगर नहीं होती तो आप भी उनको रीच आउट कर सकते हैं. एजेंसी विल रीच आउट टू यू. वो लोग आपसे एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे, आपके घर पे आएंगे, आपके साथ एक इसको होम स्टडी विजिट बोलते हैं, वो घर पे आके पूरा आपका होम एनवायरनमेंट चेक करेंगे, आपसे बात करेंगे कि आप अडॉप्शन क्यों लेना चाहते हैं, सब तरीके आपके पेपर वेरीफाई करेंगे, वो लोग आपको अप्रूवल देंगे, आप क्यों में चले जाते हैं.
सिंपल। और फिर आपको जो जैसे अवेलेबिलिटी होती है बच्चे की, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप चूज करते हैं कि आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या आपका Okay. कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो नो चॉइस भी आप चूज कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। बच्चे का एज, कितना बड़ा बच्चा मिलेगा आपको वो डिपेंड्स करता है पेरेंट्स की एज पे। सो पेरेंट्स का जो कंबाइंड एज होता है वो कैलकुलेट करता है आपका जो सिस्टम है कि वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर दोनों पेरेंट्स का कंबाइंड एज अगर हम जोड़ें तो 80 से अगर कम आ रहा है दोनों को जोड़ने पे, तो आप जो सबसे छोटा बच्चा होता है कैटेगरीज बना रखी है गवर्नमेंट ने कि Okay. 0 से स्लैब्स बना रखे हैं, 0 से 2 ईयर्स का, 2 to 4 ईयर्स का, 4 to 6 ईयर्स का, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 16, इस Okay. तरीके से एज के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो अगर जो मिनिमम है कि आपका अगर 80 ईयर्स कंबाइंड हो रहा है उससे कम हो रहा है, तो आप 0 से 2 ईयर्स के बच्चे के लिए एलिजिबल है। अब 0 से 2 ईयर्स में आपको जब भी अवेलेबिलिटी होगी बच्चे की, हो सकता है 3 महीने का मिले, 6 महीने का मिले, Okay. 18 महीने का मिले, वो इट इज लाइक दैट। और जैसे जैसे पेरेंट्स का एज आपका इंक्रीज होगा तो वो बच्चे का एज भी इंक्रीज होता रहता है। ओके जी। ओके। सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आई मीन क्या सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्शन के लिए जा जी। सकते हैं या आपको मैरिड होना जरूरी है? देखो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी जो है, एक तो आपके बायोलॉजिकल या प्रीवियस अडॉप्टेड अगर बच्चे आपके एक से ज्यादा हैं तो आप हेल्दी चाइल्ड आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक है तो आप दूसरे बच्चे के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास 2 हैं, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे वो आपके बायोलॉजिकल हो, तो आप फिर एक स्पेशल नीड बच्चे के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। सबसे बड़ा पॉइंट तो एक ये है। दूसरा जैसे एज का मैंने एक बैरियर बताया कि वो आपका कंबाइंड एज को कैलकुलेट करते। तीसरा पॉइंट आपने सिंगल पेरेंट्स की बात की। सिंगल पेरेंट्स भी कारा के थ्रू इजीली, चाहे मेल एप्लीकेंट हो चाहे फीमेल एप्लीकेंट हो, वो लोग भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, आप सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, ठीक है, तो वो चूज करते हैं। हाँ ये है कि अगर आप सिंगल फीमेल एप्लीकेंट है तो आपको ऑप्शन लड़की चूज करने का भी मिलेगा, लड़का चूज करने का भी मिलेगा, या नो चॉइस का मिलेगा। बट अगर आप मेल एप्लीकेंट है तो उस केस में सिर्फ आपको बॉय चाइल्ड का ही ऑप्शन मिलता है। उसमें फिर एज बैरियर उसमें भी देखा जाता है कि वो 40 साल से कम है तो छोटा बच्चा मिलेगा। फिर अगर आपका एज बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से। सिंगल पेरेंट्स में दूसरी चीज जो देखी जाती है, ये देखी जाती है कि अगर आप एज ए सिंगल पेरेंट है तो वी वांट टू मेक श्योर कि कोई आपकी फैमिली में या रिलेटिव में कोई एज ए गार्जियन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इन केस भगवान न करे कभी अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, तो देयर शुड बी समवन इन द फैमिली कि उस बच्चे की एज ए पेरेंट केयर। वी डोंट वांट कि हमने कोई बच्चा फैमिली में दिया है, भगवान न करे कोई सिचुएशन और बच्चा दोबारा से किसी होम में आ जाए। सो एक ये दूसरा देखा जाए। फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है उसका देखो कोई पैरामीटर नहीं बना रखा गवर्नमेंट ने। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 50,000 वाले को मिलेगा या 10,000 वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपके घर पे सोशल वर्कर आता है। सोशल वर्कर आपका घर का एनवायरनमेंट चेक करता है, आपके मोटिवेशन, क्या आप जो इनकम आपके घर पे अभी रेगुलर इनकम जो आ रही है, क्या उस इनकम के अकॉर्डिंग आप एक बच्चे को रेज कर सकते हैं। बेसिक जो नीड्स होती है बच्चे की, क्या आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं करा सकते। सो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सोशल वर्कर कि वो आपको फाइनेंशियली रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मिलेगा, ऐसा कुछ कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। एक दूसरा मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। सिंगल पेरेंट है तो ऑब्वियसली उसका मेडिकली एक सर्टिफिकेट लगता है, फिट होने चाहिए पेरेंट्स। अगर कपल है तो एटलीस्ट एक तो फिट होना चाहिए। एक तो पूरा मेडिकली फिट होना चाहिए, वो एक कंडीशन होती है। Okay. Shruti, let's talk about your experience. When you decided, I think 2018 you adopted, but when did you begin with the process? Was Kara already in the picture during that time? Yes. And how did it go for you? So we decided in 2016. We started looking at Kara. We didn't have any support group as such. Okay. We did not know anything about the legalities of adoption at the time. Today there are a lot of resources, there are a lot of Facebook groups, support groups that I am a part of now, thankfully, but back then we had nothing. So we just went by whatever the website said. Okay. And itni आसान नहीं थी उस time. They have changed a lot. अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि देखो फीडबैक से ही चीजें बदलती हैं। अगर आप फीडबैक देंगे तो उनको रियलाइज होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ग्राउंड लेवल पे। So when we started, we went through the website. It was very complicated. कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, कहाँ भेजने हैं, क्या करना है। एंड देन बिगिनिंग 2017 is when we put in the papers, everything, and then we were assigned an agency in Chandigarh because we were in Haryana. So it could be Chandigarh or it could be here in Gurgaon or Delhi, whatever. Okay. And then Chandigarh wasn't working out for us because वो बहुत दूर था. Somebody had to come, so we changed it. We had an option of changing it and we changed it to Miracles. Achha.
And so we met with Simran. She came home to do the study. Oh, I didn't know about this part. Okay. She has been instrumental in us getting the baby and just making sure that she was there at For every you. step, Yeah. even when she didn't have to. But How we nice. could always call her up or just visit her and ask her the questions, because again, like I said, we were quite clueless. So 2017 beginning is when we put in the papers, and 2018 September is when we got her. What changes you've seen कारा से पहले adoption procedure में? Because आप बता रहे थे कि पहले direct adoption जी, भी जी। होता था. जी क्या आपको लगता है डायरेक्ट अडॉप्शन अभी भी होना चाहिए? इफ नॉट, व्हाई? और कारा के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए? पर्सनली जो मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि डायरेक्टली अडॉप्शन से डायरेक्टली नहीं होना चाहिए आज की डेट में। पहले भी जो होता था उसमें चैलेंजेस थे। प्रॉब्लम ये था कि देखो, कोई भी चीज़ को मॉनिटर करोगे तो कंट्रोल रहता है। पहले क्या था, ऑर्गेनाइजेशन बच्चे तो पहले भी होते थे, लोग अडॉप्ट करते थे, बट मॉनिटर कोई नहीं करता था उसको। तो लोग आते थे, वॉक इन करते थे। पहले क्या हो रहा था कि आप गए किसी होम में, बच्चा पसंद किया, ले गए, वी डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, कोई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी कारा ने उसका मॉनिटर कर दिया, प्रॉपर आप पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको बच्चा अलॉट होगा, उसके बाद में आपका बच्चे का भी फॉलोअप करते हैं हम लोग कि आप बच्चा जब ले लेते हैं एक बार, उसके बाद जी। भी हम उनके घर जाते हैं कि कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, चाहे पेरेंट्स की तरफ हो, चाहे बच्चा अगर बड़ा अडॉप्शन में आता है तो बच्चे की तरफ से भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उनको भी हम लोग टैकल करते हैं, हेल्प करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। पहले क्या होता था कि मैं ये कहूँगा कि हम लोग बच्चे बेच रहे थे मतलब वी वर सेलिंग किड्स। क्योंकि अभी इमेजिन कीजिए कि कोई होम है जिसमें बच्चे हैं, कोई पेरेंट्स आया, क्योंकि जब आप पेरेंट्स आते तो आप उनसे पूछते कि फाइनेंशियल आपका स्टेटस क्या है, ये सब कंडीशंस देखते तो आपको पता होता है कि वो कितना दे सकते। तो लोग अपना मुंह मांगा दाम बोलते थे कि नहीं, हमें आप 2 लाख डोनेशन दो, या 3 लाख डोनेशन दो, या 4 लाख डोनेशन दो, मतलब क्योंकि कोई उसका कोई लिमिट नहीं था और कोई बाउंडेशन भी नहीं थी। बट उससे क्या होता था कि कुछ लोग ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो दे देते थे, बट कुछ ऐसे जो इतना नहीं अफोर्ड कर पाते थे, तो वो क्या उनका राइट नहीं था माँ बाप बनना, उनका भी राइट होता है। तो इस चीज को कारण ने सेंट्रलाइज किया कि नहीं, एक नॉमिनल फीस हम डिसाइड करते हैं कि वो इट इज इक्वल टू ऑल। आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है डजंट मैटर, आप अगर रिकमेंडेड है बाय द सोशल वर्कर, इट इज इक्वल फीस है एक, वो फीस भी उस बच्चे के मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि एक बच्चा किसी होम में रह रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पहले बहुत होती थी, बच्चा ले आते थे, पता ही नहीं होता था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। आजकल बच्चों को लोग अडॉप्शन में ले लेते थे, कुछ गलत देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे लोग भी होते, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी। तो लोग गलत काम भी करते थे, बच्चों को बेच देते थे, गर्ल चाइल्ड्स के साथ में अच्छा नहीं होता था। आजकल ये सब चीजें मॉनिटर होती हैं, आप रिकॉर्ड पे रहते हैं, गवर्नमेंट सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, कंट्रोल हो गया पूरा। प्लस काउंसलिंग्स के ऑप्शन है, आप जैसे कि कारा तो चलो एक प्लेटफॉर्म है, आप एजेंसीज को रीच आउट कर सकते हैं, जैसे कि जो मैम है, एक मिराकल ने इनको पूरी तरह से हेल्प किया थ्रू, जब से जुड़ी हैं आज तक, वी आर ऑलवेज इन टच विद देम। तो एजेंसीज आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एनी पेरेंट्स, आप चाहे रजिस्टर्ड कर चुके हैं या पुराने हैं, नए पेरेंट्स है, पोस्ट अडॉप्शन, प्री अडॉप्शन, तो एजेंसीज में काउंसलर्स होते हैं, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, 24 आवर्स दे आर देयर फॉर यू। सो व्हाट इज द यूजुअल वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम हैज इंक्रीज्ड अ लॉट मैम। अब उसके ना बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो, एक रीजन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, मैं ये भी नहीं कहूँगा इट इज़ बिकॉज ऑफ द होम्स। बहुत सारी चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पे, उन पे अगर हम काम करें तो हो सकता है शायद वो कम हो जाए। बट काफ़ी करंटली अभी जो वेटिंग चल रहा है, अगर आप कोई भी पेरेंट्स 0 से 2 ईयर्स की कैटेगरी में नो चॉइस को अगर हम लेके चले कि मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है बच्चे का, तो 3.5 ईयर्स तो लग रहा है मैम। देखो, गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है। अभी उन्होंने क्या रिसेंटली स्टार्ट किया, फोस्टर केयर का एक पोर्टल बनाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एज निकल गई है, या जैसे सिबलिंग्स होते हैं, अभी क्या एज पर रूल्स हम सिबलिंग्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अभी 3 बहन भाई हैं, या तो वो तीनों एक साथ एक फैमिली में जाएं। अब कोई एक छोटा है, 2 बड़े हैं, तो लोग चाहते हैं कि छोटा दे दो, 2 मुझे। तो उसमें इन्होंने कारा ने भी नया पोर्टल लॉन्च किया पोस्टर केयर में, कि आप बच्चों को पोस्टर केयर में ले सकते हैं। आप बच्चों को एज ए आप जाइए, आप अपने एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल होते हैं, सोशल वर्कर आपको रेकमेंड करता है, आप क्या करेंगे, बच्चे को घर लेके आ जाएंगे अपने पास, बच्चों को एज ए पोस्टर केयर रखेंगे, आप बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप 2 साल बाद आप क्लेम भी कर सकते हो उन बच्चों को। 2 साल तक आपने कंटिन्यूसली रखा उस बच्चे को, और आपको लगता है कि मुझे पोस्टर केयर कंटिन्यू करना, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैंने 2 साल रखा है, मैं अब इसको लीगली अपना बच्चा एज ए अडॉप्टेड में उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा उस बच्चे का।
अगर आप बिल्कुल। उसको करना चाहते हैं। तो अभी अच्छा। ये लॉन्च किया है कि वेटिंग को थोड़ा रिड्यूस सो करें। ये कब से इंट्रोड्यूस किया अभी गया? 8-9 मंथ्स हो गया उन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और दूसरा कितना इससे फोस्टर पेरेंटिंग अभी तक, क्या व्हाट अभी इज द डेटा? अवेयरनेस की कमी है। जैसे मेरे पास Okay. तो 2 फैमिली आई है अभी तक, बट कारा इज वर्किंग ऑन इट। जैसे अभी नवंबर जो ये मंथ है अपना, ये अडॉप्शन अवेयरनेस मंथ है, तो कारा बिल्कुल। का जो इस बार यही मिशन है कि एटलीस्ट पोस्टर केयर को हम इंट्रोड्यूस करें। मिराकल जो चैरिटेबल सोसाइटी है, वो भी हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो जर्नी टू जीरो मिशन है हमारा, हम चाहते हैं कि होम में जो बच्चा है वो जीरो हो जाए। अब चाहे वो अडॉप्शन के थ्रू फैमिली में जाए, चाहे पोस्टर केयर के थ्रू फैमिली में जाए। हाँ, क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना जरूरी है, चाहे अडॉप्शन के थ्रू मिले, पोस्टर केयर के थ्रू। तो मिराकल का भी यही मिशन है कि जर्नी टू जीरो करना है हमें। बिल्कुल। सिंपल है। So I'll come back to the foster care. उसमें भी I have a lot of questions. Shruti, when you had applied for adoption, उसके बाद you had home study report procedure, and then I think the real waiting game begins. Yes. So उस waiting time में आपको enough information मिलता था, regularly updates मिलते थे, या बहुत confusion था कि कोई clarity नहीं है कि कब तक मुझे wait करना पड़ेगा? तो उस टाइम हमारे पास ऑप्शन था टू चूज 3 स्टेट्स। जैसे आज वो ऑप्शन नहीं है। आज आपको ऑल इंडिया चूज करना है। द गवर्नमेंट विल डिसाइड, द सिस्टम विल डिसाइड कि कौन सी स्टेट से आपको मिलता है। Okay. इट्स ईजियर। ड्यूरिंग दैट टाइम हमने 3 स्टेट्स चूज करी जो आसपास की थी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल। हाँ। एंड देन वी केप्ट वेटिंग। तो आपको वेबसाइट पे नंबर दिख जाता है कि आपकी सीनियरिटी कितनी है। इज द नंबर मूविंग? डू यू थिंक देयर इज एनी होप? हमने 1 साल तक तो देखा, the numbers just wouldn't move because these are populous states. यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। उस टाइम करप्शन भी बहुत ज़्यादा था। We did not have too much information कि ये numbers क्यों move नहीं हो रहे। Yes. And बहुत uncertainty थी। Like I said, कोई support group नहीं था। हम सिमरन से बात कर लेते थे, but what could she say? Seniority का number तो government ने decide किया। So we kept waiting. And then one day my husband just decided, let's try some other 3 states. And on a lark, he just changed those 3 states. Within 2 months, we got a call. And we got her. You think you were just lucky? We were just lucky. And we were super lucky because of the state also. No fuss, totally efficient. I've heard horror stories. Yeah, exactly. That's why I said so, because I was just speaking to one of my family members. उन्होंने भी adoption के लिए apply किया था. Home study हो गया था. Then for 2 years, they were still on the waiting list. और 2 years के बाद they said कि आपका home study report अब expire हो गया है, so फिर से आपको रिवैलिडेशन, हाँ, revalidation के लिए जाना पड़ेगा. So I think for parents who it's like first child जिसको वो adopt करना चाह रहे हैं, and for medical reasons or whatever reasons they cannot have children, so they are really keen on having kids. ये जो long waiting period है, ये बहुत demotivating हो सकता है, emotionally draining भी हो सकता है उनके लिए. How was it for you? It was completely just so uncertain. We didn't know whether to go ahead with this or not because we had a child, and the child, we had conditioned her to understand adoption in a way, and she kept waiting. Every time we would meet Simran, she would say, "Where's my baby?" Yeah. And अब उसको क्या समझाएं कि we are waiting. But still, we were still so much luckier than the parents today. COVID really messed up the waiting times for sure. So waiting time double हो गया है उसके बाद. Yeah. But we were also very uncertain, and like I said, we got really lucky with the state that chose us. Yeah. The most efficient state I have heard so far. We just went there, we met the people, they were wonderful. Our documents were all set because of Simran. And we had a small support group of our own. For example, our pediatrician. Yes. Very, very supportive. He spoke to the doctor there at the agency. We made sure that all her documents were in order, and that's it. In one day, we got her back. So we were lucky. But yes, the waiting period today, so demotivating. I'm sure जो waiting period इतना extended है, उसके valid reasons हैं. बहुत सारे reasons हैं. But parents जिनको नहीं पता है या जो उस वेटिंग पीरियड को भी फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत दिस इज़ वेरी बैडली अफेक्टिंग देम. कैन यू पुट इट इन सिंपल टर्म्स कि इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड क्यों है, सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, और उसके क्या रीजंस हैं? आई मीन देखो, सबसे बड़ा जो रीजन है ना मैम, कि होम में एक बच्चा आता है, मान लीजिए एक बच्चा मेरे पास आया,
तो मैंने पहले भी बताया कि एक बच्चे का आना होम में डजंट मीन कि बच्चे का अडॉप्शन में जाना होता है। उस बच्चे के एक बैकग्राउंड स्टोरी होता है, वो हमें बैकग्राउंड में काम करना होता है, उस बच्चे का पेपर वर्क तैयार करना होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं मैम कि जिसमें बच्चा आया, मान लीजिए बच्चे के कोई भी पेरेंट्स या रिलेटिव अवेलेबल हैं, वो उस कंडीशन में नहीं है कि उसकी केयर कर सकें, लेकिन वो उस कंडीशन में भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को अलाउ कर दें कि वो किसी फैमिली के साथ अडॉप्शन में चला जाए। तो अब बाहर से पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लगेगा यार होम में बच्चे तो बहुत हैं, तो ये दे क्यों नहीं रहे। लेकिन एक इंटरनली एक बच्चे का कहीं केस स्टडी चल रहा है, जबरदस्ती तो हम छीन के किसी को भी नहीं देते। वी डोंट वांट कि बच्चा देने के बाद कोई क्लेम करने आ जाए। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा मैम, जो बच्चे आते हैं ना वो अनहेल्दी मदर्स के बच्चे होते हैं। हमें उनका कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता होता है, कुछ ही आइडिया नहीं होता है कैसे डिलीवरी हुई, जो 9 मंथ्स का टाइम था कैसा था, माँ की उम्र क्या थी, कुछ नहीं पता होता है। तो हर बच्चा हेल्दी भी नहीं होता है। आज की डेट में मिराकल चैरिटेबल सोसाइटी के पास में 80 बच्चे हैं मैम अंडर आवर केयर। आउट ऑफ 30 बच्चे स्पेशल नीड बच्चे हैं। इंडिया में थोड़ा ये है, मैं नहीं कहूँगा, शायद टाइम लगेगा इस चीज को बदलने में। एक वो माइंडसेट है कि हमें अगर बच्चा चाहिए तो एक परफेक्ट हेल्दी बच्चा चाहिए, कलर उसका साफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा इन चीजों को भी अगर हम अपना साइड में करके, उसमें लिस्ट होती है आपके पोर्टल में, स्पेशल नीड बच्चों की लिस्ट होती है, प्रॉपर डिटेल्ड मेडिकल होता है, यू गेट द मेडिकल रिपोर्ट रिव्यू बाय योर फैमिली डॉक्टर फ्रेंड्स। काफी बच्चे हैं, वहां से आप अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली। Data also says that people prefer, एक तो they prefer adopting a boy, दूसरा they prefer कि 0 to 6 months के अंडर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, that's true। उसके क्या challenges गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं? देखो, अब छोटा बच्चा, अभी 2 चीज है मैम। एक और जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है, देखो गवर्नमेंट 2 चीजों पे काम कर रही है। गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड। पहले हमने अभी पिछले 10 साल में काफी इंप्रूवमेंट है। एक टाइम था कि गर्ल चाइल्ड को लोग देखते भी नहीं थे, आज गर्ल चाइल्ड को भी लोग, समाज हमारा एक्सेप्ट करने लगा है। तो गवर्नमेंट ही काम कर रही है कि सोसाइटी में इन चीजों में बदलाव हो कि बच्चे को फेंके नहीं, बच्चे को छोड़े नहीं। फाइनेंशियल अगर क्राइसिस है आपको, तो हम आपको फाइनेंशियल एड देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चा बायोलॉजिकल फैमिली में जितना ज्यादा रहेगा उतना मच बेटर है। अडॉप्शन तो सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद फोस्टर केयर है, उसके बाद होम है। तो जितना ये समाज हमारा इंप्रूव होगा, चीजें एक्सेप्ट करेंगे लोग कि नहीं हमें बच्चे रखेंगे, गर्ल चाइल्ड से हमें प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करेंगे, बच्चा बच्चा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। देखिए हमारी अगर सोसाइटी इंप्रूव होगी, सोसाइटी समाज अच्छा होगा, तो ये नंबर डेफिनेटली आपका कम होगा। केसेस नहीं आएंगे, ऐसे केसेस नहीं आएंगे तो होम में बच्चे कहाँ से आएंगे मैम? तो गवर्नमेंट, हम तो यही चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, होम में बच्चा ही ना आए। तो मेन पर्पज ये कि वहां हमारा सुधार हो रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 10 इयर्स में, स्पेशली जो टियर 1 सिटीज में काफी इंप्रूवमेंट है। तो केसेस कम हो रहे हैं। तो अब जैसे बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि लिव इन में लोग रहते हैं और ऑब्वियसली उनके बच्चा हो जाता है जब, तो वो ये चाहते हैं कि हम उसको छुपा लें, अपने माँ बाप पेरेंट्स तक ये बात ना पहुंचे। लीगली वो लोग रख सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट बिकॉज वो एक टैबू है सोसाइटी में, एक सोच ऐसी है कि शादी से पहले आपके बच्चा हो गया, आप कैसे रखोगे। तो वो उस चीज के डर से वो क्या करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होती वो तो फेंक देता है बच्चे को, अबेंड कर देता है। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, गूगल कर लेता है, यूट्यूब कर लेता है, वो क्या करता है, आप जाके लीगली दे भी सकते हो बच्चे को। देयर इज ए प्रोविजन कि आप लीगली आप जाइए, आप एजेंसी को अप्रोच कीजिए, अपना बच्चा आप लीगली दे सकते हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। जिसको पता होता है वो अप्रोच कर लेते हैं। तो समाज इस चीज में भी सुधार कर रही है कि अगर लिव इन में भी अगर बच्चा मान लीजिए हो गया, तो वो सोच बदलने की कोशिश कर रही है विद एजुकेशन अवेयरनेस की आप उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फिर भी खुद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट आप जाइए और लीगली सरेंडर कीजिए। तो जब समाज में अगर इंप्रूवमेंट होगा ना मैम, तो देखो अवेलेबिलिटी तो कम होगी बच्चों की, और सबको छोटा चाहिए, बिल्कुल बड़े बच्चे किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि वो एडजस्टमेंट इश्यूज का रहता है लोगों का। वो एक माइंडसेट है कि बच्चा एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। और मोस्टली ये भी है कि अब पेरेंट्स जैसे मैरिड, उनका शादी होता है, वो लोग ट्राई करते हैं अपना नेचुरली कि 5 साल 10 साल, बहुत पेरेंट्स है वो 10-15 साल इस चीज को ट्राई करते हैं, उसके बाद में आते हैं तो फिर वो एज बैरियर लग जाता है उनको कि आप उस बच्चे के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो ये भी एक इशू है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा जो मुझे कारा का प्रॉब्लम ये लगता है, अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस अच्छा कर दे कारा थोड़ा और, तो राइट टाइम पे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मुझे अप्लाई करना नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट है, 3 साल शादी हो गया, 4 साल हो गया, दे हैव रियलाइज समवेयर कि शायद इशू आ सकता है। अगर उस टाइम पे उन्हें दूसरा ऑप्शन भी पता हो कि यार कारा भी एक ऑप्शन है, वहां हम अप्लाई कर देते हैं, मीनवाइल अपना जो हम ट्राई कर रहे हैं मेडिकली नेचुरली वो चल रहा होता है। एक पॉइंट आएगा जब आपको क्लियर हो जाएगा कि अब नहीं हो सकता, तो उस समय एटलीस्ट आपके पास दूसरा ऑप्शन तो होगा। अब ये लोगों को क्यों नहीं पता, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। सो मिराकल इज ट्राइंग दैट
कि हम एक स्टिग्मा दूर करें, अवेयरनेस फैलाएं कि आप करिए प्लीज, नेचुरली आप ट्राई करें, लेकिन आप ऑप्शन लेके प्लीज चलिए। बिल्कुल। तो एटलीस्ट जब आपको उस समय फिर फील नहीं होगा कि वो 3 साल का वेटिंग है कि 3.5 साल का वेटिंग है, तो आप ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। हाँ। तो वो अवेयरनेस का मुझे Lack लगता है of मैम कमी है। awareness जी और, मैम, तो ऑप्शन उस इस पे तरीके से काम करना हम, हाँ, बहुत टाइम निकल ज़रूरी है। जाएगा। जी मैम। बिल्कुल। So Shruti, there are so many parents who want to go for adoption. What would you tell those parents when it comes to the emotional aspect of it, that how they should prepare themselves before adoption? Because adoption के लिए apply करना एक चीज़ है, और adoption के बाद बच्चे को घर लाना, वो I think that's a different thing altogether. Completely. So what are the things parents should be prepared for? First of all, the couple or the main person adopting, should be clear in their mind that this is an option that they want to explore. So I get a lot of messages on Instagram, especially because our story is very public. And most women message me to say that my husband is not agreeing. There's no point in even going for adoption then. Because वो एक mindset है कि हमारा खून नहीं है ये. It makes my blood boil just listening to this phrase, and a lot of people say that. आप क्या कर लोगे अपने खून से, मुझे तो यही समझ नहीं आता. It makes no difference at the end of the day whether you gave birth to this child or not. A child is just a child, has no religion, has no nothing. You can mold that child into whoever you want him to be. Yes. But not many people get that. Families to bilkul, in-laws and parents, they don't get it. So one good thing Tara does is also the counseling of the extended family. In the HSR only, they have an option. If you tell them, the HSR person will come home and they will counsel your extended family as well. But the parents who are adopting the child have to be very, very clear and on the same page that you are doing this. ये तो शुरुआत है. The next would be, now you can't choose the child. So वो आपकी तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, that's a very big question. और उस केस में you have to be mentally prepared कि काफ़ी लोग outsiders आपको कुछ भी बोलेंगे, आपके बच्चे को भी कुछ भी बोलेंगे. You have to first of all be strong yourself and then make sure that your child is strong to reply to these people. In our case, when we started out, I explained to my older daughter that it's a family, right? Families are made in different ways, by birth, by marriage, by friendship, and by adoption. It's just a way to make the family, and this is what we live by. Yeah. So, and our child doesn't look like us at all. We got her from Mizoram. So she's 6 now, and I foresee a lot of questions coming in, which is fine. I'm ready. How old was she when you adopted her? We got really lucky. She had just turned 3 months when we got the call. Okay. Have you spoken to her about adoption? From the at what very age? beginning. Like when we would be singing lullabies to her or telling her bedtime stories. One bedtime story was her arrival in our house. How she came, where she was born, all of that. So she knows it. And she talks about it in her school as well. So it's been very open because I was so open publicly. I heard a lot of stories where people were not open and they suffered later on in life. Their kids suffered. Yes. When a third party told them that you're adopted. For a child to go through that after 10, 12, 15 years is traumatic. And they will not get out of their trauma forever. It's better to have an open communication with the world and the child. Because a lot of parents think कि, again, partners are not maybe on the same page. One parent को लगता है कि हमें beginning से बता के चलना चाहिए. दूसरे parent को लगता है कि नहीं बताना है. Whatever be the reason, उस doubt में कि हम बच्चे को बताएं या नहीं बताएं, and then living with that fear कि बाद में कोई उसको बता देगा. What would you say to these parents? Like, what would be your advice? How should they speak to their child? At what age they should open up to their child about adoption? Very first day. Of course, a child बहुत छोटा है तो obviously, but from the very first day. There are customized books that are available that you can make for your child to show their story, which is what we did. Okay. There are a lot of adoption books as well. There are forums, there are groups. And I've been on a lot of these forums where people who adopted like 20, 30 years ago, they give this advice that the child should be the first one to know. So that the child is strong and it's normalized. Yes. Our entire concept
revolves around normalization of adoption, Yes. so that nobody suffers in this process. It's a Hmm. very, very natural thing. It's a very normal thing. It's like childbirth, right? It's Bilkul. not different at all. Bilkul. So yes, from the very beginning, be open with the child and explain whatever circumstances that you can explain. That this happened, but you opened your hearts and your homes to this person, Yes. and he or she is yours now. Yeah. So the way you have a conversation with your biological child, have the same with your adopted child. इसी आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि इसी मिराकल इज आल्सो ऑन द मिशन टू नॉर्मलाइज द अडॉप्शन. और जो हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस सिमरन लामा मैम, वो ये कहती है कि आप जिस दिन आपने ये लाइन एक्सेप्ट कर ली ना कि बच्चे पेट से पैदा नहीं हार्ट से होते हैं, हाँ. उस दिन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एक्सेप्ट करना. क्योंकि अगर पेट से ही बच्चे पैदा होते तो ऑर्फनेज में बच्चे नहीं होते. बिल्कुल. आपको अगर ये लगता है कि पेट से बच्चा पैदा होता है हार्ट से नहीं होता, तो फिर ऑर्फनेज में बच्चा कोई नहीं छोड़ता. आपने ये एक्सेप्ट किया है ना बच्चे हार्ट से होते हैं, दिल से होते हैं, तो उस दिन आप इजीली एक्सेप्ट करने लग जाओगे. सो ये चीज हमें सोचनी चाहिए. जो ब्लड की से बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ब्लड का ही अगर इतना होता तो फिर बच्चे ऑर्फनेजेस में क्यों आएंगे. अगर ब्लड इतना इंपॉर्टेंट होता है. नहीं बिल्कुल, बहुत सारे रीजंस बहुत होते सारे हैं that reason है. तो parents go counselling, for it, हाँ, but I think बहुत सारे doubts भी होते हैं. And one of the doubts they may have because you already had a daughter. Did you ever feel कि we are taking such a big step of adopting another one? Will there be differences between them? या कभी उसको tackle करना हमारे लिए बहुत challenging हो सकता है? So पर्सनली तो मुझे कोई डाउट नहीं था, हाँ. ना ही मेरे फैमिली में किसी को डाउट था. बट रिसेंटली मैंने सुना किसी से दैट द फादर सेड, विल आई बी एबल टू लव दिस चाइल्ड एज मच एज आई लव माय बायो चाइल्ड. एंड आई थॉट ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं. हमारे लिए तो एक बच्चा ही है. दैट्स हाउ आई वाज रेज्ड, दैट्स हाउ लकीली माय हस्बैंड वाज आल्सो रेज्ड. हमें तो नहीं लगता ऐसा. सो टू प्रिपेयर द फैमिली, I would suggest the first step would be to speak to the agency for counseling. That's number one, because they do now counsel the extended family as well. And then, of course, the parents who are adopting have to be on the same page. Yes. None of this my coon and your coon and all of that business, because if you're not on the same page, please don't adopt. Do not mess up the life of a child. Yes. So that's number one, I think. And then, of course, tell the child from the very beginning that he or she is adopted, and normalize it. That's the whole point of this conversation, is to normalize adoption. And that this is why I also take as many opportunities as I can to speak about this, so that it's normalized for me first, then my child, then the rest of the world. And I do advocate adoption as a way to make your family. Yes. Yes. Very important. It's the same as birthing a child. It's the same as getting married and getting a family. Your friends are also your family. Adoption is just another way. Yeah, as I said, like adoption से पहले का process is a completely different process. आप अभी भी waiting में हैं, apply कर रहे हैं, you know you want to have a child. Adoption के बाद the reality hits. Now the child is with you at home. Yep. So how do you think that's going to affect you emotionally and psychologically, and even, you know, the entire thing at home completely changes? So how to deal with that? So I'll speak from my own example. Our daughter was 6 when our second one arrived, and she was 3 months old, and we had forgotten what dealing with an infant was. So from buying all the cots and the prams and the car seats to waking up in the night, I was 40 when she came. In fact, we got the message on my 40th birthday. How sweet. So to do nights at 40 years old is not easy, but it's something that I wanted to do, so I did it. And everything changes. I was an entrepreneur by that time, so thankfully I did not have a job, but that was something that I decided, and that's something that everyone has to be clear with. Yes. Who will be the primary caregiver in whatever case, be it you give a birth or you get a child like this. So everything does change. What should not change is your attitude towards a child who has been adopted versus your biological child.
that is the biggest issue that extended family members face. Did you face any challenges with your first one? Not at all. She was very excited from the beginning, from the day we put in our papers. Like I said, she used to ask Simran every time they would meet, where's my baby? And so when she finally arrived, she was the most excited. She got very, very possessive. Yeah. She would not let anyone touch her, bathe her. She would be with her at all times. And as they are growing up, I see that the bond is just like I had a bond with my sister. They fight like cats and dogs, but they are together. Siblings all are the time. siblings after all. Absolutely. There is no difference. Yeah. And that just gives me so much hope, you know. And that should And give I think hope. preparing your child is the Yes, key, right? You it prepared is. her It since is. beginning, It so is. there was no So the friction there. funniest part was we did not prepare anyone else. We did Huh. not tell our parents that we had applied. Huh. Because I think somewhere in the back of our minds, we thought maybe they are not ready for this. We knew we were. So we prepared Zara. And Huh. we told her not to tell anyone. And she didn't for some reason. We told our family the day we were leaving to pick her up. We did not give them time to react at all. And thankfully, everything went well. But we prepared our child for a good 3 years that this is happening and Yeah. this is very normal. Yeah. And So that she is was the most happy. important thing. Yeah, yeah. After all, absolutely. it's 4 of you. Yes. together. At the end of the day, it's Yeah. just us. Yeah. I think it has a lot to do with your intent as well. And as I understood, even the authorities have to validate your intent. Yes. They come home, and that is the biggest Yes. part of your home Biggest one, yes. study. Yeah. Can you tell me a little bit more about that? And how do you actually have to prove your intent to the authorities? So whenever we go to any family house to for their home study, so if there is a child, she told, like, for 3 years we prepared the child. This is the best thing she did. And that's what we always tell all the parents, because it's a 3 years vetting. You should utilize that vetting. It's not like you have registered, your home study has completed, and now you are just like looking to that number, like कितना आपका कम हो रहा है. At least utilize that 3 years. अगर आपके biological already बच्चा है, आप उसको prepare करो. That's how they read. And वो एक सक्सेसफुल अडॉप्शन जर्नी बना आपका. अगर आपके बच्चा नहीं है, तो जैसे मैंने ऑप्शन बताया कि पोस्टर केयर लो. अगर आप वो नहीं ले सकते, स्टार्ट गोइंग टू द होम्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद दोस किड्स जो ऑलरेडी वहाँ होम में रह रहे हैं. तो उससे आपका एक तो टाइम निकलेगा. आप, मैं नहीं कह रहा कि रोज जाओ, आप वीकेंड्स पे जाओ, फेस्टिवल बनाओ, अपने बर्थडेज बनाओ, उससे एक टाइम निकलता है. फिर एक आपको आइडिया भी होता है कि देखो, एक सबसे बड़ा माइंडसेट आपको ये बना लेना चाहिए कि एक बच्चा 3 महीने 4 महीने का मैं होम से लेके आ रही हूँ, और एक मेरा अपना नेचुरल है. उसमें बहुत डिफरेंस होता है. 4 महीने का 5 महीने का अपने बच्चे का ग्रोथ, 4 महीने 5 महीने का एक होम से लाए हुए बच्चे में डिफरेंस आपको मिलेगा. अब वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप उस 3 साल 4 साल को यूटिलाइज करोगे, उन बच्चों के साथ जाके टाइम स्पेंड करोगे कि यार होम में एक बच्चा 4 साल का रह रहा है, 4 महीने का रह रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, कैसे ग्रो कर रहा है, क्या करता है, क्योंकि उसका फीडिंग अलग होता है, रूटीन अलग होता है. वो माँ का प्यार हमेशा तो नहीं मिलता. मदर्स होती है, लेकिन 24 आवर्स तो अपने छाती के नहीं लगा के रख सकती बच्चे को. तो ये सब डिफरेंसेस आप इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि यूटिलाइज करो. तो मेंटली हम लोग देखते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग है पेरेंट्स, क्या दोनों एक पेज पे हैं कि नहीं है. कोशिश ये भी करते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करो, बट एटलीस्ट जो विद इन फैमिली जो रह रहे हैं उनके साथ में, जैसे पेरेंट्स यूजुअली रहते हैं, तो एटलीस्ट जो ग्रैंड पेरेंट्स है बच्चे के, वो काफी सपोर्टिव हो, तो वो एक एडवांटेज होता है अडॉप्शन को कंप्लीट करने का. तो आपके फ्रेंड सर्किल कैसा है? हम लोग ये कहते हैं, जब मैडम ने सही किया कि वो बता के, मतलब वो आप फ्रेंड सर्किल में बता के चलोगे, फर्स्ट डे से अडॉप्शन को आप ओपन लेके चलोगे, तो ये बच्चे को एडजस्ट करना भी ईजी रहता है. बिल्कुल. और हमारे पास तो सबसे बड़ी स्टोरी है, लॉर्ड कृष्णा की इतनी अच्छी स्टोरी है, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें इस जर्नी में, तो बहुत हेल्प मिलती है बच्चे को फैमिली में एडजस्ट होने में. देखो, फाइनेंशियली देखना, पेपर है कि नहीं है, ये सब चीजें बात की होती है. आपका मोटिवेशन, आप कितने रेडी हो, आपके फैमिली मेंबर्स कितने रेडी हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, और आपके पास एक इनफ टाइम है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो या करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो. और मैं ये कभी नहीं कहूंगा किसी को भी कि एक विजिट मैं 1 घंटे के करके मैं डिसाइड कर दूंगा कि आप एलिजिबल है कि सुटेबल है. दैट्स व्हाट मिराकल डज. मतलब मिराकल का ये कॉन्सेप्ट है कि मिराकल विल डू द होम स्टडी, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, बट वी ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल द पेरेंट्स, always in touch with the agency, always in touch with the social worker,
कीप विजिटिंग द एजेंसी, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है, नई नई स्टोरीज पता चलती है। हो सकता है जैसे ड्यूरिंग 3 ईयर जितने अडॉप्शन हुए उन पेरेंट्स से मिलने का टाइम मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, तो दैट्स हाउ वी वर्क। हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप पेरेंट्स को अगर बिजी रखोगे, ऐसा नहीं कि मैं होम स्टडी करके चला गया 3 साल बाद बात करना, तो अडॉप्शन वो टूट जाएगा पेरेंट्स। नहीं. If I talk about aftercare, so agencies, what is the kind of support you get from these agencies? क्योंकि सिर्फ बच्चे को ही नहीं, पेरेंट्स को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है. And you spoke about support groups. So what are these groups and what are the kind of support they provide? So we found it very informally on Facebook. And that's when we realized that there were a lot of people who lived very close to us who had adopted and had very similar-ish stories to us. Gives a lot of support, gives a lot of hope. Because there does come a time when you are just on your own. Yeah. And you don't know what to do because you generally do not get the medical histories of the child. You don't know if they have any congenital disease or, anything. So we had a really good pediatrician for the older one. We went and told him that we are doing this. He was very supportive. He told us a list of tests to make sure to do at the time when you go and pick up the child. And then we went, we spoke to the doctor there as well. Again, we got lucky. That's all I'm going to say. So we had everything there. When we came back, we found these groups and they tell us, be it doctors or be it documentation. Then there was Simran, who was always there to help us, even with the revalidation calls. We visited her, we saw all the kids. Zoya also met everyone. So that is the kind of thing that will help us normalize and which is needed. So adoption groups on Facebook is what really helped us. We connected with a lot of people through that. So sharing your stories and listening to their stories and sharing experience will help you definitely. तभी आप utilize करो उस time को. That is the best thing you can do. हाँ. Also, there are meetups that happen. अच्छा. Twice a year, where Delhi NCR, as many adoptive parents with their kids, they come and they meet. I think that's the highlight of the year for us. Because then the kids meet each other and they have varied stories and the parents are experienced. They can help us understand what to do when a tough situation will come. And it will come. When the kid gets bullied. Community help is something that is really... So that outreach is just amazing. A lot. There's another thing which has come into the picture for working moms. So you have maternity leave. So if you have given birth, I think 6 months maternity leave is what you get. But adoption के case में क्या leave का कोई provision है? So for the government employees, there is a provision that if you are adopting a child below 1 year, then definitely there is a circular issued by the ministry that you can apply for the maternity leave. But for the private organization, it is totally depends on their internal policy, whether they are giving for 15 days, 3 months, 2 months. So there is no guidelines issued by the government that private organization also has to give the adoption leave, and these many should be. For the government employee, it is mandatory. It is that there is a circular. No, private companies need to wake up to this. My husband, when we adopted her, I wasn't working. He was, but his company actually gave him 6 weeks of adoption leave. Okay. Unheard of. Yeah. But that was the only company which actually did give. It's not very widely available or known yet. I think that's right. Like the private companies also has to, come with this adoption leave policies. For sure. Because what I heard कि कुछ companies में शायद 2-3 months का option है, but not 6 months. और I think as you said, under 1 year में वो option है, but above 1 year में वो option नहीं है. Also, kids who are above 1 year, they also need a lot of time. Exactly. With the parent. And even parents also need a lot of time. It's the first time they're doing it. So उनको भी वो time मिलना बहुत ज़रूरी है. You spoke about bringing in 2 changes in the laws in the adoption process. So we spoke about Susmita Singh. She's the first one who came up with, single parenting adoption, and she also helped with 2 changes in the adoption law. So the first one was single parent adoption. Okay. And the second one was that a single parent can adopt the second girl child. Since CARA came, since JJ Act came, it was always, there was no this kind of condition that, if you adopted a girl child, you can't adopt another girl child. So इंडिया में there are 2 laws of adoption. एक जो पहले चल रहा था
कारा से आने से पहले क्या होता था, हामा, विच इज हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 में बना था ये, एंड दैट इज ओनली फॉर हिंदूज, वो सिर्फ हिंदूज के लिए ही था, हिंदू फैमिलीज के लिए। तो उसमें कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मान लीजिए मैं एक हिंदू फैमिली हूँ और जो सामने जो मुझे बच्चा दे रही वो भी हिंदू फैमिली है, तो उसमें कंडीशन थी कि मेरे पास अगर लड़की है तो मैं लड़की नहीं ले सकता था, तो सेम जेंडर वाज नॉट अलाउड। तो उस प्लस 15 ईयर से बड़ा बच्चा, 16 ईयर से बड़ा बच्चा अलाउड नहीं था, सिंगल पेरेंट्स अलाउड नहीं था। तो ये सब चीजें कारा ने जब नया एक्ट बनाया तो इसमें रिलीजन उसमें फाउंडेशन थी, इट वाज ओनली फॉर द हिंदूज। तो ये सब चीजें कारा ने जेजे एक्ट जब बनाया तो ये सब चीजों को उन्होंने रिमूव किया कि कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं होना चाहिए, जेंडर का ऑप्शन होना चाहिए, चाहे आपने पहले लड़का लिया हो या बाद में लड़की ले रहे हो, उसका कोई ऑप्शन नहीं। सिंगल पेरेंट्स के लिए भी है, मेल पेरेंट्स के लिए भी है। तो ये सब चीजें जेजे एक्ट में स्टार्टिंग से जेजे एक्ट में कोई बाउंडेशन नहीं डाली थी। हाँ, पहले ये हामा में बाउंडेशन थी जो आज भी है, हामा इज स्टिल एग्जिस्ट, मतलब हामा आज भी एग्जिस्ट करता है, बट दैट इज ओनली फॉर हिंदूज। बट जो कारा है वो दैट वर्क्स ओनली अंडर जेजे एक्ट में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फॉस्टर पेरेंटिंग। अभी आपने उसके बारे में थोड़ा बात किया है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में इफ यू कुड एक्सप्लेन फॉस्टर पेरेंटिंग में और अडॉप्शन में क्या डिफरेंस है? देखो, लीगली डिफरेंस है, मतलब वैसे तो सेम चीज है कि आप बच्चा अपने पास लाके वो सारे राइट्स होते हैं, आप बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज देते हैं जो अपने बच्चे को देते हैं, अडॉप्टेड को देते हैं। लीगली में ये होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं टेम्परेरी में, एक तो होता है कि क्या मैं रेडी हूँ, उसका भी डाउट क्लियर हो जाता है कि एक बच्चा मैं 1 साल रखूंगी, 2 साल रखूंगी, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं अडॉप्शन के लिए रेडी हूँ कि नहीं हूँ। इस एक्सपीरियंस है। दूसरा, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट रहेगा, रेदर देन वो 2 साल किसी होम में रहेगा, 2 साल एक फैमिली में रहने का बहुत डिफरेंस होता है। तो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि बच्चा फैमिली एनवायरनमेंट में रहेगा, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उस पेरेंट्स को एक तो वो रेडी हो जाएंगे उस चीज से, दूसरा वो जो गैप है, वेटिंग जो गैप है, वो उनका फील नहीं होगा उनको कि इतना वेटिंग गैप हो रखा है। तो ये 2 बड़े एडवांटेज है। तीसरा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, मान लीजिए एक बच्चा मैंने फोस्टर केयर में लिया, मैंने उसको रखा, और जैसे कि जो नॉर्मल हम अप्लाई करते हैं अडॉप्शन, उसमें बच्चा चूज करने का ऑप्शन नहीं होता मैम। यू कांट चूज ए स्टेट आल्सो, मतलब बच्चा तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप स्टेट चूज नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एजेंसी नहीं करता, रैंडमली आपको आएगा, सो यू डोंट नो कहाँ से आएगा। इसमें थोड़ा ये ऑप्शन होता है कि एडवांटेज की, मान लीजिए 2 साल मैंने किसी बच्चे को फोस्टर केयर में रखा एंड नाउ आई फील कि अब मैं रेडी हूँ अडॉप्शन के लिए, सो यू विल हैव एन ऑप्शन कि आप उस पर्टिकुलर बच्चे को आप चूज करके ले सकते हैं। क्या कोई ड्यूरेशन होती है कि इतने ही मिनिमम 2 इयर्स आपका अडॉप्शन, मैक्सिमम आप फिर उसको कंटिन्यू कितना भी कर सकते हैं। तो मैम मान लीजिए 2 इयर्स आपने कंप्लीट किया, लेकिन स्टिल यू आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट दैट चाइल्ड, बट यू आर स्टिल रेडी टू कंटिन्यू द फोस्टर केयर, तो आप उसको कंटिन्यू आप रिन्यू करवा सकते हैं एवरी ईयर। व्हाट इज द वेटिंग टाइम फॉर फोस्टर केयर? फोस्टर केयर का कोई वेटिंग नहीं है। देखो, 6 साल से छोटा बच्चा फोस्टर केयर में नहीं मिलता, पहली बात तो। Okay. क्योंकि 6 साल से छोटे बच्चे का तो अडॉप्शन होना ईजी रहता है, और वेटिंग इतना अच्छा है कि बच्चा अगर कोई है तो हम उसको अडॉप्शन में डाल देंगे। 6 साल से बड़े बच्चों के लिए लोग कम आगे आते हैं, तो उन बच्चों का अवेलेबिलिटी बहुत है मैम। आप अप्लाई कीजिए, लिस्ट होती है आपकी स्टेट में कि कितने बच्चे फोस्टर केयर के लिए अवेलेबल है। यू कैन जस्ट पिक एनी चाइल्ड एंड टेक द चाइल्ड इन द फोस्टर केयर में। छोटा बच्चा 6 साल से छोटे बच्चे का प्रोविजन नहीं है फोस्टर केयर का, 6 साल से बड़े बच्चों का फोस्टर केयर में ले सकते हैं। Alright. So Shruti, if I talk about societal pressure and social pressure, you said you didn't even tell your parents, right? क्या फेस किया आपने जब आपने फाइनली उनको बताया कि यू वेंट फॉर अडॉप्शन? और आपकी स्टोरी तो आई वुड से बहुत अलग है, बिकॉज यू ऑलवेज बीन सो वोकल एंड ओपन अबाउट इट। देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स जो इस चीज़ को हाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इतना ओपनली वो अडॉप्शन के बारे में बात करें। उनके लिए ये जो सोशल प्रेशर है वो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। हाउ शुड दे डील विद इट? Well, first of all, they should be very clear that they adopted due to a reason. Is that reason good enough for them to discuss it with the child and the society? It should be, ideally. अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको सोसाइटल प्रेशर है बच्चा पैदा करने का, तो ये इंटेंट ही गलत है। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव नॉट एवरीबडी इज फिट टू बी अ पेरेंट। हमारे यहाँ प्रेशर बहुत है कि आप सबको पेरेंट होना है, ये आपकी लाइफ का गोल है। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो आप इनकम्प्लीट हो। ये सबसे पहले ये माइंडसेट ही खराब है, जिस वजह से बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे अडॉप्ट करके आपने अबैंडन कर दिया। अगर ये माइंडसेट हट जाएगा तो हम वी विल बी इन अ मच बेटर कंडीशन सोसाइटल प्रेशर वाइज। व्हाट आई फेस्ड फ्रॉम माय इमीडिएट फैमिली वाज कंप्लीट एक्सेप्टेंस। इवन देन वी वर स्कैर्ड। इमेजिन couple of instances that I did see from like
complete strangers was a little discerning. थोड़ा सा मुझे concern हुआ कि how will my child cope with this kind of society? I remember she had just come. She was 3 months old, and I was doing a school pickup for the older one. So everybody saw her and they were like, ये क्या हुआ? कहाँ से आई? I said, adopted. Just came. ये वो. I would say 99% of the people were very happy, very supportive, congratulated me, everything. There was one woman who came to me and said that I just turned 40 and I also want a second child. Is adoption a good option for me? I would like to discuss with you. I was like, fine. I met a lot of such people. There was one woman who held her back and said, no, I know a doctor. You go to her. I wanted to punch that woman is what I wanted to do. Yeah. And she said it so publicly in like a school setting. Your kids are listening. So there are such people. And I have to make sure that my child is strong enough to face these people. A lot of unfortunate older people in like our society will look at her and say, तुम्हारे घर में Chinese कौन है? And that's so wrong on so many levels. It's unbelievable. So we have to make sure that she says, I'm from Mizoram. It's in India. I hope you understand. Geography भी नहीं होती ना हिंदुस्तानियों में. तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. If they don't look like you, कि कहाँ से आई है ये वो. So ये सारे issues रहेंगे. I think you yourself have to be very strong emotionally. If you are strong emotionally, your child will be strong and they can face whatever life throws at them. So गिरिराज, सबसे ज़्यादा adoption requests कहाँ से आते हैं इंडिया में? मोस्टली जो अडॉप्शन रिक्वेस्ट देखिए मैम, क्योंकि अडॉप्शन आज भी एक टैबू जैसे ही देखा जाता है. मतलब इंडिया की अगर हम ओवरऑल बात करें तो कि जैसे स्टार्टिंग में होता था कि नहीं, अगर हम जा भी रहे हैं तो सीक्रेटली होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए. अब कारा का तो ऐसा है कि आपकी वेरिफिकेशन भी होती है, घर पे लोग भी आते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप इट सीक्रेट. सो मेट्रो सिटीज में बहुत नंबर्स आते हैं. सबसे ज्यादा की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आई थिंक महाराष्ट्र स्टेट इज द वन जहाँ पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं. दिल्ली आल्सो. इन हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट इज द वन जहाँ पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती है, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद. So I think Maharashtra and Delhi जो metro cities. Do you think it has anything to do with more awareness? आई थिंक क्योंकि मेट्रो सिटीज में एक तो ये सोच बदल गई है मैम. कि ये एक टैबू है, वो चीज़ बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया इस चीज़ में. लोग एजुकेटेड है, अवेयरनेस है, लोगों को पता है एडॉप्शन क्या होता है, तो वो लोग इजीली आ जाते हैं, रिचेबल है. थोड़ा हम नीचे जाएंगे टियर 2 टियर 3 में तो आज भी लोग डरते हैं. वो एक टैबू बना हुआ है जिसको तोड़ने के सबसे बड़ा जो तरीका है वो एजुकेशन ऑब्वियसली मैम. दूसरा आई थिंक अवेयरनेस, जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की अभी जो कमी है सबसे बड़ी, जो मुझे फील होती है कि कारा को अवेयरनेस पे काम करना चाहिए इस स्टिग्मा को तोड़ने के लिए. मिराकल इज डूइंग दैट, बट मिराकल अकेला पूरे देश को तो इट्स वेरी टफ. तो कारा अगर इसमें आगे चल के आए और अवेयर करे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना लेंदी प्रोसेस है शायद वो भी. हाँ. सो बहुत सारे पेरेंट्स को they already lose hope कि इसमें तो बहुत time लगेगा. Absolutely. And then they start seeking different options. So they might go, I don't know, sometimes maybe even illegal adoptions or surrogacy or just stop the whole process basically. But I would say through this podcast to everyone जो भी देख रहे हैं, please, मतलब I think 3 साल wait करना it's tough, definitely I feel it, but इलीगल अडॉप्शन से जाना मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत केसेस हमारे पास आते हैं. अभी मेरे पास गुड़गांव का केस है, 8 बच्चे एक साथ ट्रैफिकिंग में पकड़े गए थे, छोटे छोटे बच्चे जो ऐसे दिए गए थे. तो वो एक होता है ना, देखो 3 साल वेट कर लोगे वो टफ टाइम है, लेकिन जब ले लोगे आप तो वो जो चैन की नींद आएगी ना मैम आपको, कि मैं सुकून से सो रही हूँ आज, वो इलीगल में आपको जिंदगी भर रहेगा कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा. कोई क्लेम करने आ जाए बच्चे को, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपका पूरा वो हिस्ट्री निकलता है मैम. तो आई वुड सजेस्ट और रिकमेंड एवरीवन, प्लीज, ठीक है वेटिंग है, वेटिंग को टालने का, कम करने का तो नहीं, बट उसके साथ उसको कैसे हम फील नहीं करें, उसके तरीके हैं जो मैंने बताए हैं वो हम करें, तो शायद हमको इतना फील नहीं होगा. रेदर देन वो इलीगल से तो बहुत अच्छा है कि हम 3 साल वेट कर लें या 3.5 साल वेट कर लें मैम. आई कंप्लीटली, वो आपको सुकून रहेगा जिंदगी भर, आपको भी रहेगा, आपका बच्चा को भी रहेगा. सो इंडिया में अडॉप्शन रेट इतना कम है,
बट मेरा जनरल इम्प्रेशन ये है कि अडॉप्शन रेट इसलिए कम नहीं है क्योंकि इनफ पेरेंट्स अडॉप्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, बट अडॉप्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि प्रोसीजर बहुत स्लो है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, कई हद तक कह सकते हैं मैम कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. हम लोग कारा कोशिश भी कर रही है, दे आर ट्राइंग कि उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया है, ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रही है. से आप 2017 की वेबसाइट और आज की वेबसाइट में आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस कि अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस एजेंसी में कितने बच्चे हैं, किस स्टेट में कितने बच्चे हैं, कितने पेरेंट्स रजिस्टर्ड है, वेटिंग है, स्पेशल के लिए कितने हैं. तो ये चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक अभी बदलाव की ज़रूरत है. हम फीडबैक देते रहते हैं, तो आई होप कि गवर्नमेंट विल I look think into अगर ये these. प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाएगा, I'm sure there will be lot more adoption. अभी you said it's only 3 to 4,000 per year, हाँ right? मैम, इतना ही अभी 3 to 4,000 ही आ रहा है बिल्कुल अभी. प्लस दूसरा ये भी ना मैम कि देखो हमें ना ये देखना होगा कि हर बच्चा हेल्दी नहीं होता है, स्पेशल बच्चे होते हैं. I was going to come to हाँ. that because most of these centers, हाँ. उसमें जो बच्चे हैं या तो वो स्टैंडर्ड हाँ, हैं या जी, जी. पेरेंट्स ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कोई डिजीज है जी, जी, या जी. स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं. So majority of children are specially abled or having some sort of 30-40% disease, स्पेशल right? बच्चे होते हैं मैम. So are parents open to adopt such children? What are the challenges that agencies face? इंडिया में बहुत रेयर है मैम. मतलब मैंने अपनी 8 साल के करियर में एक फैमिली देखी है जिन्होंने ओपनली आके स्पेशल बच्चे को, मेरी एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में स्पेशल बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए बहुत रेयर पेरेंट्स हैं. रीजंस हो सकते हैं. एक मेरे को जो लगता है ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स, मोस्टली चाइल्डलेस कपल आते हैं अडॉप्शन अप्लाई करने के लिए. कुछ पेरेंट्स हैं जिनके अपने वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो अगर रेशो की बात करें तो 70% पेरेंट्स आर चाइल्डलेस. तो ऑब्वियसली उनका एक माइंडसेट रहता है कि हम ऑलरेडी चाइल्डलेस कपल हैं, तो अगर हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए. दूसरा एक जो है इंडिया का जो रिसोर्सेज है एक स्पेशल बच्चे को पालने की सुख सुविधाएं जो है वो मुझे नहीं लगता है. आप हॉस्पिटल जाइए या स्कूल जाइए किसी भी, क्या वहाँ पे वो स्पेशल बच्चों की स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो अगर कोई व्यक्ति ले भी लेगा मान लीजिए बच्चा, तो वो फिर वो सुविधाएं उसको दे नहीं पाएगा. तो फिर इससे भी फिर फाइनेंशियल भी बहुत एक्सपेंसिव होता है स्पेशल बच्चे को रेज करना. बाहर जो लोग कहते हैं कि फॉरेनर्स को बहुत अडॉप्शन जा रहा है, वो लोग दे आर ओपन टू अडॉप्ट स्पेशल नीड चिल्ड्रन. उनके पास नॉर्मल बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है. फॉर अडॉप्शन इंडियंस आर ऑलवेज प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट में. और वो इसलिए क्योंकि उनको हमेशा लास्ट में रखा जाता है, क्योंकि पहले हमेशा इंडियन पेरेंट्स को प्रायोरिटी देंगे. अगर इंडियन पेरेंट्स भी किसी बच्चे को XYZ रीजन से नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली देखो हमारा तो मोटो ये है ना कि मुझे तो बच्चे की फैमिली फाइंड आउट करनी है. अब चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन पेरेंट्स हो, बट हाँ ऑब्वियसली प्रायोरिटी इंडियन फैमिली. अगर फिर भी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें तो बच्चे को प्लेस करना है. तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं फॉरेन पेरेंट्स की तरफ कि इंडिया में इसको कोई नहीं ले रहा है, चाहे इसका मेडिकल इशू हो चाहे कोई और इशू हो. अब फॉरेन पेरेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं कि अब आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए. उनके वहाँ पे ऑब्वियसली मैम दे हैव रिसोर्सेज, फाइनेंशियल का भी थोड़ा उतना है उनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, तो वो लोग प्रेफरेंस देते हैं और उनका फिर दूसरा ऑप्शन में नहीं होता है कि कोई नॉर्मल. फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने अभी बोला था, जो पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, जरूरी नहीं है कि वो अडॉप्ट करके बच्चे को घर लाएं. वो जी हाँ, ऑर्फनेजेस में भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. आप जैसे बहुत बच्चे स्पेशल, आपको पता है कि ना वो एक्सट्रीम जो स्पेशल बच्चा होता है तो वो तो फॉरेन में भी नहीं जाता है, तो इंडिया में तो मैं मान ही नहीं सकता. तो उन बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं कि ठीक है मैं अपने यहाँ पे नहीं करता, किसी तरीके से उस बच्चे की मैं हेल्प कर दूं. उस बच्चे को जो ट्रीटमेंट चाहिए उसमें मैं हेल्प कर दूं. उस बच्चे का अगर कोई स्पेशल तरीके का एजुकेशन चाहिए, कोई अलग फैसिलिटीज चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, थेरेपीज चाहिए, तो उन चीज़ों में मैं उस तरीके से उस बच्चे को मैं स्पॉन्सर कर दूं बच्चे को. तो इस तरीके का हम कर सकते हैं जो पेरेंट्स करना चाहें, तो ये भी एक ऑप्शन होता है. So Shruti, I want to ask you, because you're so vocal and open about it, so you must be getting a lot of questions, right, on through Instagram and when you create content around adoption. What are the most common questions you get from parents who are willing to adopt? Waiting period. I know a lot of people who backed out of the process because of the waiting period. Then people who've adopted, they want to know when to tell the child. And I tell them immediately. Let it not come to a point where a third person has to butt in and tell your child. Yes. Because I've seen
several instances where this has happened, it has scarred the child for life. हाँ. And you don't want that No. at all. So You should be the first one you should to be tell the your first child. person. Because then they will feel कि ये normal नहीं है, बिल्कुल. मेरे साथ कुछ गलत हुआ है शायद. हाँ. और And मेरे पेरेंट्स ने क्यों मुझसे क्यों हाइड मुझसे किया? हाइड किया. Also see, every child who is adopted comes with an adoption trauma, a separation trauma. चाहे वो छोटा infant हो, चाहे वो बड़ा हो, एक trauma उसके पास है. Hidden trauma है कि वो अपनी family के साथ नहीं है या वो अपनी माँ के साथ नहीं है. We don't realize this, but it manifests later in life, sometimes quicker, sometimes later. No matter how happy your home environment is, the child will need therapy at some point. Yeah. And that's another point where Indians have to be really vocal and open about therapy. Yeah. It's needed. As Yeah. adoptive parents, you need therapy. As adopted children, they will need therapy. And it's not something, it's not a stigma. And what are the options available for that? There are a lot of options available. Lot of them. The agency will has help you. counselors. अच्छा. Always do. Okay. They will be the first people to help And it's you. free, ma'am. अच्छा. The agency's counsels are free. I mean, you don't have to pay anything. You To can counsel always the approach- child as well as the as parents. well as the parents. Pre or post, both, ma'am. Okay. Okay. But as they grow up also, you need a child psychologist to to be in touch with. Yes. For the It's very happiness essential. for your child. Absolutely. और मैं लाइन जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जो कि बच्चे को हम कैसे बताए. देखो उसके ना हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है पिछले 8-10 साल में, जैसे कुछ पेरेंट्स है कि रेडी होते हैं कि इमीडिएटली हम लोग बताते, कुछ है झिझकते हैं कि आप कैसे बताएं, कब बताएं, क्या राइट टाइम है. उसका हमने मेरे हिसाब से जो हमें लगता है सही तरीका एक हो सकता है जो आप प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी पेरेंट्स. आप जब अडॉप्शन में बच्चा लेके आते हो, उस बच्चे को जो भी आपका नियरेस्ट होम है आप उसमें ले जाके, जैसे बर्थडेज हो गए आपके या कोई इवेंट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, आप उस बच्चे को ले जाओ, वहां पे विजिट कराओ, टाइम स्पेंड कराओ. जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा तो उस बच्चे को क्या है वो डिफरेंस फील होगा कि आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव पेरेंट्स. शायद एक दूसरी दुनिया भी है, बाउंडेशन उनके पास शायद वो चीज नहीं है. मैं आज मम्मा को बोलूंगा मुझे टॉयज चाहिए, इमीडिएटली मिल जाएगा. तो वो बच्चे को जब डिफरेंस धीरे धीरे पता चलेगा कि आई एम प्रिविलेज. दूसरा मैं ये कहता हूँ किसी भी पेरेंट्स को कि आप कभी ये मत जताओ बच्चे पे कि हमने आप पे एहसान किया है. ऑलवेज से टू द चाइल्ड, आपकी वजह से We we are blessed. completed. We are blessed. You are not. We Yes, are we blessed are बस blessed. because of you. तो बच्चे को इम्पोर्टेंस लगेगा फैमिली में कि मेरा कितना इम्पोर्टेंस है इस फैमिली में. तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो. तो बच्चे का फिर जब भी आप बताएंगे राइट टाइम, आपको जब लगेगा कि हाँ माई चाइल्ड इज रेडी, तो वो ये चीजें मैटर करेगी उसके माइंड में. Yes. तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. जो इमीडिएटली नहीं बताना चाहते वो इस तरीके से 2 साल 3 साल 4 साल जब भी उनको लगता है उस तरीके से काम कर सकते हैं. You have to make your child feel really कि valued हाँ, and valued, respected बिल्कुल, and loved. And then I think there is always a right time to open up and Open up, speak बिल्कुल. about it. तो वो प्रिपेयर रहेगा बच्चा हाँ. उससे. एक गिरिराज, मैं आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. यू मेंशन कि आप ऑर्फनेज में पले जी. बड़े हैं. हमने पेरेंट्स की साइकोलॉजी के बारे में बात किया, अडॉप्शन कैसे होता है, पेरेंट्स क्या फील करते हैं. एक बच्चे का क्या साइकोलॉजी होता है जब वो एक अडॉप्शन सेंटर में है, जी. ऑर्फनेज जी. में है, एंड दे आर वेटिंग कि कोई फैमिली आए और हमको अडॉप्ट करे. जी मैम. वी वांट टू हैव अ फैमिली. व्हाट डज द चाइल्ड गो थ्रू? अर्ली जो मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि जब हम बहुत अर्ली एज में होते हैं, मुझे नहीं लगता 10 साल 12 साल से कम में अगर होम सारी फैसिलिटीज दे रहा है तो उसको इतना रियलाइज होता नहीं है मैम. मतलब आई डिड नॉट रियलाइज कि मेरे पास फैमिली होनी चाहिए क्योंकि आई वाज आई थिंक प्रिविलेज्ड टू बी इन द बेस्ट होम वेयर आई हैड ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, गुड एजुकेशन, गुड मेडिकल. सो आई डिड नॉट रियलाइज अंटिल आई वाज इन 11th और 10th ग्रेड. उस समय शायद कभी कभी आपको फील होता है, वो इसलिए जैसे कोई मोमेंट्स होते हैं कि कुछ गलती कर दी, डांट दिया आपको, तो आपको लगता है कि शायद मम्मी होती, पापा होते, मूवीज देखते हम लोग, तो उस तब रियलाइज होता है. फिर बाद में ऑब्वियसली मैम जब आप बाहर निकलते हो उस दुनिया से, एक टाइम पे आपको बाहर आना होता है, इंडिपेंडेंट होना होता है, बहुत रियलाइज होता है मैम. ये मुझे भी बहुत रियलाइज हुआ था कि हैविंग अ फैमिली कितना बड़ा ब्लेस्ड है. जब मैं बाहर आया, वो स्ट्रगल, लाइफ में फाइट करना, कोई नहीं होता आपके आगे पीछे, वो चीज मैंने रियलाइज की कि मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो. एंड फॉर्चुनेटली आई फाउंड मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी एंड आई जॉइंड देयर. एंड हमारा मतलब पूरी मिरेकल टीम का यही मिशन है कि हमें जर्नी टू जीरो करना है. मैं वो नहीं चाहता जो
मैंने या मेरे साथ जो थे उन्होंने वो जो फैमिली नहीं है उनके पास जो स्ट्रगल है वो इन बच्चों को जितना कोशिश हो सके जितना हम कर सकें बच्चों को फैमिलीज दो, बाकी सुख सुविधाएं तो फैमिलीज भी दे देगी मैम। 100%। सो ये चीज है मैम, तो फैमिली होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम, बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल स्टोरी विद अस। एक और क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है दैट इज कि अगर आप फैमिली में अडॉप्शन करना चाहते हैं, सो रिलेटिव अडॉप्शन, या फिर सिबलिंग्स को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, लाइक वन चाइल्ड इज ऑलरेडी अडॉप्टेड और अडॉप्टिव पेरेंट्स चाहते हैं कि सिबलिंग को भी अडॉप्ट करें, क्या ऐसे प्रोविजंस हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडॉप्शंस व्हिच आर देयर अवेलेबल? सो देर इज जो अभी हमने जो बात की वो बात की अडोप्शन जो होम में बच्चे होते हैं जिनका हमें पेरेंट्स का कुछ पता नहीं होता है, या पेरेंट्स ने लीगली बच्चे को सरकार को हैंड ओवर कर दिया कि आप उसके लिए एक फैमिली फाइंड आउट कीजिए। अभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि रिलेटिव अडोप्शन होता है। मान लीजिए मुझे अपने भाई की बच्ची को गोद लेना है, अपनी बहन की बच्ची को गोद लेना है, या मुझे अपनी बच्ची बहन भाई को देना, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। इट्स वेरी सिंपल, कारा पे आपको रजिस्टर करना है, उसको रिलेटिव अडोप्शन बोलते हैं। आप उसमें रजिस्टर करेंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा घर पे, एंड देन आपको कुछ नहीं, उसमें वेटिंग भी नहीं होता क्योंकि बच्चा तो आपके पास ऑलरेडी है। इट्स जस्ट कि एक पेपर वर्क का प्रोसेस होता है, 2 to 3 मंथ्स का होता है। तो मैं हर किसी को रिकमेंड, देखो इंडिया में आजकल क्या है, हम इंडिया की सोसाइटी का विच इज ए गुड थिंग आल्सो कि अगर फैमिली में किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ तो हम लोग कि उन भाई का बच्चा बहन का बच्चा मतलब मेरा बच्चा, तो हम लोग उसको पालते हैं। बट देखिए लीगली अगर हम उसको कर लेंगे तो बहुत हेल्प करता है बच्चे को भी, आगे बच्चे का स्टडी होता है, फ्यूचर होता है, जॉब होती है, बाहर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, पासपोर्ट बनना होता है, तो ये सब चीजें। It's very good that you mention it because I think बहुत लोगों को ये misconception भी है कि ऐसा adoption available नहीं है और कारा के थ्रू ही जाना पड़ेगा। It is available and it is free। आपको कुछ नहीं, कारा पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है, आपका वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा ये। ओके। और वेटिंग का तो कोई इशू है ही नहीं इसमें। आप पेपर वर्क का 2 to 3 मंथ्स का लगता है मैक्सिमम। Tell me more about the twins or siblings if they want to stay together and one of them is being adopted already, so दूसरे बच्चे को फैमिली में या आउटसाइड कर सकते हैं। आउटसाइड तो देखो पॉसिबल नहीं है मैम, जैसे ऑर्फनेज का जो होम का जो बच्चा अगर उसमें आप एक लेना चाहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे विद इन फैमिली में, जैसे मान लीजिए मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, अब मेरे नहीं है, भाई के 2 हैं, तो वो मुझे एक देना चाहता है, वी कैन डू इट। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है तो बच्चे का कंसर्ट लगेगा। जिसको हम दे रहे हैं उसका भी और जो सिबलिंग है उसका भी लगेगा कंसेंट। तो 5 साल से अगर बच्चा बड़ा है तो हम चाहे हम दोनों बच्चे भी ले सकते हैं, चाहे हम एक बच्चा भी ले सकते हैं। रेट डिपेंड्स ऑन द फैमिली ना, उन पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है कि हम वो देने को एग्री है कि नहीं। यार बच्चा अगर 5 साल का है, बच्चा अगर अपने चाचा या ताऊ के साथ रहना चाहता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड इफ देयर आर सिबलिंग्स और ट्विन्स इन एन ऑर्फनेज होम केयर, तो क्या प्रेफरेंस ये रहता है कि दोनों को एक साथ अडॉप्ट कराया जाए? बिल्कुल, हम ऐसा, इट विल बी ऑलवेज, ट्विन्स है चाहे सिबलिंग्स है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते मैम। उनका अगर अडॉप्शन किसी को लेना है तो वो ऑल टुगेदर लेना पड़ेगा मैम, उसको हम नहीं कर सकते। एक दूसरा अडॉप्शन एक और होता है, स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन। बहुत केसेस होते हैं जहाँ रीमैरिजेस होती हैं, प्रीवियस मैरिज से किसी एक स्पाउस को बच्चा होता है, लेकिन हम लोग रीमैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन वो लीगली, क्योंकि पापा का नाम तो या मम्मी का नाम तो पुराना ही चल रहा होता है। हाँ। तो उस केस में लोगों को ये पता नहीं है कि स्टेप पेरेंट्स भी आप कंप्लीट करके और जो जिस भी स्पाउस से आपने रीमैरिज की है उनका नाम उसके डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा लीगली। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है विच इज वेरी इजी। तो वो भी एक प्रोसेस है, स्टेप पेरेंट्स अडॉप्शन भी लोग कर सकते हैं। ओके, श्रुति, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, जब आपने अडॉप्शन किया था, वर यू एवर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मेरी डॉटर का, जिसको मैं अडॉप्ट करी, उनके रूट्स क्या हैं, वो कहाँ से आई हैं, हु वर हर पेरेंट्स? वर यू एवर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट? Not really. No. We always knew that there's an option if the parent, the bio parent decides to be found out, they can put that in the paperwork at the time of safe surrender. And then the child has an option when he or she turns 18 to explore that option. They can go and find their roots. I am very supportive of that idea. Not many people are. Okay. But I am, because as people we always want to go back to our roots. हाँ. तो हम भी जाना चाहेंगे। Psychology, yeah. Absolutely. तो उस बच्चे से हम क्यों छुपाएंगे उसकी roots? That which leads me to another point. When we adopt a child, especially from another culture, क्योंकि इंडिया है, cultures बहुत हैं, बिल्कुल, we must make sure that her biological culture stays with her in some way. For example, हम यहाँ रहते हैं,
हमें मिजोरम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, हमें लैंग्वेज नहीं पता, हमें कल्चर के बारे में नहीं पता, बट आई मेक श्योर कि अगर कोई फेस्टिवल है और इफ़ देयर इज़ लिटरेचर ऑन इट, वो क्या कपड़े पहनते हैं, क्या बात करते हैं, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट शी गोज थ्रू ऑल ऑफ दैट. So she never feels like we took away something. She should feel like she got bonus in life and nothing was subtracted. It was just an addition. So it's very important that parents do this. अगर आपको पता है, आपको पता है कौन सी स्टेट से आया है बच्चा, प्लीज मेक श्योर कि उस स्टेट का एटलीस्ट पता हो बच्चे को, कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, फेस्टिवल्स क्या है. It takes a lot of courage to be able to do that. Hats off to you, seriously. But it's so important for the child. Yeah, I mean, all you're trying to do as caregivers is make sure that the child, bio, adopted, doesn't matter, is a healthy, happy, well-adjusted human being. Isn't that why we become parents? बिल्कुल. So, अब वो अलग अलग तरीके हैं वो करने के, तो you must do whatever you can. Would you like to shed more light on route tracking? Like, So there is obviously it is a child right कि रूट सर्च हो सकता है बच्चे का. So अगर कोई बच्चा अडॉप्शन में गया है, so she said right कि कोई भी होम में, एजेंसी में बच्चा कोई पेरेंट्स दे के जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक फॉर्म फिल करना होता है, एंड वेयर दे हैव टू मेंशन कि इन केस कभी अगर बच्चा आता है तो वेदर वी अलाउ और नॉट. So if they say no, then definitely we will not allow. But if they say yes, we'll definitely allow the parents. अब बच्चे का क्या है, अगर बच्चा अडॉप्शन में गया and बच्चा is below 18 and root search पे जाना चाहता है बच्चा, तो the child has to get the consent from the parents. जो उसके adoptive parents हैं, उनका परमिशन चाहिए होगा. बच्चा अगर 18 हो गया है, तो definitely the child itself can approach to agency or CARA or any authority जो इसमें adoption में involve होती है. एंड डेफिनेटली जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कोशिश करते हैं हम उसको प्रोवाइड कराने की. सो कितना फ्रीक्वेंटली आपको रूट सर्च की बहुत रेयर है मैम, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है. ओके. So we have a segment, we call it community Q&A, जिसमें हम अपने listeners को upfront पूछते हैं, अगर कोई question है वो हमारे guest से पूछना चाहते हैं. So I have questions for both of you. Shruti, we've got a question for you from Kriti, and she's asking, as an adoptive parent, what's been the most rewarding part of your journey, and what advice would you give to others considering adoption? I think the most rewarding part is just seeing a child happy, healthy, prospering. And the advice that I would like to give is just open your minds and your hearts. Love is love, and children are children. Yes. Nothing else. Simple. So beautifully put together. Giriraj, I have a question for you as well from Ekta. She's asking, as someone who has worked closely with adoptive families, what advice do you have for prospective parents to better prepare emotionally and practically for adoption? सेम चीज मैम, आपको सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, ओपन होना है, स्ट्रॉन्ग होना है. जो चैलेंजेस आएगा आप एजेंसी से फीडबैक लीजिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए आप रेडी कीजिए अपने आप को. अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, तो बच्चा आएगा. तो आप स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके बच्चे को वो डिमोटिवेट कर दे. बिल्कुल. जैसे मैम इतनी स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने मिजोरम से बच्चा लिया है, गुड़गांव में रह रही हैं, लेकिन सी नो की ये खुद इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी अगर खड़ा होगा तो, एंड उन्होंने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो there's no fear, there's फिर no कोई doubt. डर ही नहीं रहता है. बिल्कुल. तो आप सबसे पहले अडॉप्शन में जाने का वेटिंग के बारे में आप छोड़ दीजिए. ठीक है, वो सब चीजें होती रहती है. आप सबसे पहले अपने आप को रेडी कीजिए और इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि जो चैलेंजेस है, और ओपन हो जाइए अडॉप्शन के लिए. बिल्कुल. ये कोई टैबू नहीं है, आप ओपन हो जाइए. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप एक बच्चे को फैमिली मिल रही है, इससे अच्छा काम मुझे नहीं लगता कुछ कर रहे हैं हम लोग दुनिया में. Thank you so much for bringing in such insightful information on the show, और अपनी स्टोरी इतने अच्छे से हमारे साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर ये बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगा जो हमें सुन रहे हैं या फिर अडॉप्शन के बारे में इवन सोच रहे हैं. सो थैंक यू श्रुति, एंड थैंक यू गिरिराज. सो श्रुति, वी बीन रियली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, एंड नाउ वी वांट टू ओपन द स्पेस अप फॉर मेनी मोर पेरेंट्स टू लर्न, एंड आई वुड लाइक टू डू अ लिटिल गेम segment where we will be playing a quick game we called Adoptive Parent Truths.
and I will ask you a few questions, thoughtful questions about your experience, and you can tell us what resonates with you. The first question is, what's one thing that surprised you the most about becoming an adoptive parent? How easy it was. Many adoptive parents talk about their biggest fear being the bond with their child. What would you say to that? Again, how easy it was. How important do you think it is to talk to the children about their adoption story from an early age? Very important. Make it a bedtime story, make it a poem, make it fun, but do it religiously every day till they feel that it's the most normal thing in the world. What's one piece of advice you would give to someone considering adoption? Do it for the right reasons. Don't do it because society is telling you that you're childless. Yeah. That's not a happy environment for you, let alone a child that is going to come. Do it for the right reasons. Absolutely. How do you navigate people's curiosity or misunderstanding about adoption in your daily life? That's a good question because there is a fine line between curiosity and judgment. And as a parent, you can always tell. Yeah. So if someone's curious, I will go out of my way to explain. But I can tell if someone is being judgmental, Yes. I will shut that off right then and there. So now we're going to repeat the same segment for Giriraj. As an adoption officer, you've been part of many families' journeys, and we would love to hear your take on adoption process through this game we are calling Adoption Journey Insights. So I'll ask you a few questions and would love to hear your thoughts on that. What's the most common misconception people have about the adoption process? Misconception is that religion, I think कि सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे रिलीजन का नहीं होगा बच्चा तो क्या एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, ये बहुत सारों के होते हैं जो कि which is a good thing in JJ that we don't have to disclose. Yeah. So Yeah. I think ये मैटर नहीं करता है, ये नहीं करता है मैटर रियलिटी में. No, totally agree with that. In your experience, what's one thing adoptive parents should be prepared for emotionally during the adoption process? आज के सिनेरियो को देख के वेटिंग डेफिनेटली. आप फर्स्ट डे से अगर आप प्रिपेयर रहेंगे कि इट इज अ लॉन्ग टाइम और राइट टाइम पे अप्लाई कर देंगे तो इट विल हेल्प यू. Yes. दूसरा जैसे मैंने पहले भी बोला कि बी स्ट्रॉन्ग एंड ओपन टू द अडॉप्शन. What do you think is the biggest barrier to adoption in India today, and how can we address it? Biggest barrier is still there are people that who wants to adopt but because of this society stigma they don't want to come. So I think वो तोड़ने की जरूरत है. And the another is कि अभी भी बहुत लोगों की सोच है कि हमें बॉय चाइल्ड ही चाहिए. हाँ. तो ऐसा कुछ नहीं है. गर्ल्स भी उससे आई थिंक बॉय से ज्यादा ही कर देगी. तो आई थिंक ये हमें सोच बदलने की जरूरत है कि इट डजंट मैटर इट्स अ बॉय और गर्ल. आपको पेरेंट्स बनना है. What role does the adoption officer play in supporting both the child and the parents? सबसे बड़ा रोल है ऑब्वियसली उनकी काउंसलिंग करना, उनको प्रिपेयर करना और वो जो 3 साल या 4 साल का जो वेटिंग है उसमें उनको हेल्प करना और ये कोशिश करना कि वो वेटिंग उनको फील ना हो और उनको रेडी करना कि अडॉप्शन के लिए आप स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो. जैसे मैंने आइडियाज बताए कि आप विजिट कीजिए, आप सोशल वर्कर के टच में रहिए, आप उनसे फीडबैक लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि कभी कोई अडॉप्शन हो रही हो तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो आपको वो एक्सपीरियंस शेयर हो. If you could change one thing about the adoption system to make it more efficient, what would it be? I would maybe change the authorities at ground level, मैम. काफी वेटिंग मुझे लगता है कि रिफॉर्म करने की जरूरत है. आई वुड सजेस्ट कि जो JJ एक्ट 2015 में बना था उसमें जो अथॉरिटीज जो इन्वॉल्व होती है, एक अडॉप्शन एजेंसी इज नॉट द ओनली अथॉरिटी इन्वॉल्व इन दिस एंटायर प्रोसेस. देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, कारा इटसेल्फ, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी इन स्टेट.
तो बहुत सारे इन्वॉल्व, पुलिस हो गई आपकी, तो मुझे ये लगता है कि रिफॉर्म करने की जरूरत है इस चीज को, थोड़ा फास्ट ट्रैक, थोड़ा तो उससे फास्ट ट्रैक होगा मैं, I would do that changes. So, Shruti and Giriraj, thank you so much for being here today. It means a lot to me. I think it's not just been very insightful, but emotionally also it's been a very enriching episode for me, because I have learned so much. आपकी real story से, आपके experiences से, और आपका as an adoption officer, how much work you've been doing on the ground. So thank you so much for sharing your stories with me. And I'm sure जो parents हमको देख रहे हैं, adoption के बारे में सोच रहे हैं, now they will come forward for adoption. वो जो misconceptions हैं या doubts हैं या fears हैं, वो definitely अभी दूर हो गए होंगे. All thanks to you guys. And as a token of appreciation and to thank you from the bottom of my heart, I have this little gift for you from Ate, little hamper for your girls. Oh, I hope they like it. thank you. It's a bit heavy. It is. And Giriraj, you're not a parent, but I'm sure there is one child in your home care who dearly needs this, and you really consider your own child. So please, Thank you. it is for them. And I would love to send many more hampers for all the children at your home care. So we will definitely make sure that you receive them. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.